Hello everyone, so today we will see exercise 1.5 of this first lesson. This is the last exercise. So first here, find the second order derivative of the following. So here second order derivative means you have to differentiate two times. Okay, first of all we will differentiate first. We will consider let y is equals to. So each question you have to represent let y is equals to, then you have to differentiate again. After that, after getting first answer, again you have to differentiate that answer, means two times you have to differentiate, that is second order derivative. So first question will solve. So here this is the first question. So let y is equals to 2x to the power 5 minus 4x cube minus 2 by x square minus 9. So we will differentiate with respect to x. So y derivative with respect to x will come dy by dx, 2 as it is, and x to the power 5 we will use x to the power n, and x to the power n formula we know that already over. X to the power n derivative will come n x to the power n minus 1. Okay, so this formula we will use. So here n means 5 x to the power 5 minus 1 will come 4. Then for second also same formula, 4 into x cube where derivative will come 3x square minus 2. And now see, 1 by 2 is a constant, so 2 will write outside, and this 1 by x square derivative if you will find, you will get minus 2 by x cube. 9 is a constant derivative is 0. So here we will multiply 5 2 is 10, 4 3 is 12, minus minus plus 2 2 is 4. Now x to the power 3 is down positive, when it will come up it will come negative, and 0 no need to write. Now this is our first derivative. We have to find second order derivative, means we have to differentiate again one times. So dy by dx will come again derivative d2y by dx square. Okay, so here you have to tell d2y by dx, so don't tell d square y by dx square, like this don't tell. So you have to tell d2y by dx square, then 10 as it is because it is a constant, and x to the power 5 again use this for same formula, x to the power n differentiation formula. So here will come 4x cube minus 12, and x square will come 2x plus 4, and here same we will use x to the power n means minus 3 x to the power minus 4. Then multiply 4 tens are 40, x cube minus 12 twos are 24x, plus minus minus 12 threes are 20, 4 threes are 12, into x to the power minus 1. Now this x to the power minus 1 when we will write down, it will become positive power. So this is the last answer of first question, means we have differentiate two times, first time second time. Now next we'll see fifth question. So log of log x, similarly we have to first of all denote let y is equals to our question. Now we know that log differentiation is 1 by x. So here first log we will differentiate, and this is as an angle, so this will consider as a x. So 1 by log x, again log x derivative will find 1 by x. So here y derivative will come dy by dx, log x will come 1 by log x, again log x derivative will come 1 by x. So these both will multiply in denominator, so x log x will come, and in numerator 1. So x log x here it is a power is a 1, so we will write up numerator, will do reciprocal, then power will become some minus 1. So this is our first differentiation. Now we'll differentiate next time. So dy by dx will come d2y by dx square, and here first we will use x to the power n. So n is means here minus 1, minus 1 will come front, x log x, and minus 1 will become minus 2. Now again we will differentiate this inside bracket 1, x log x, again derivative. So this will be as it is, and x log x, here these two are two functions, so u into v product rule will apply. X first function, then derivative of second log x derivative will come 1 by x, plus second function as it is into derivative of first x derivative will come 1. Then x will cancel, will become 1 plus log x into 1 log x. Then here this minus 2 when we'll write down, it will become plus 2 power, and this minus will write up, then this bracket will multiply up, and this denominator. So this is the answer of fifth question.
Then after that, sixth one, let y is equals to x to the power x. Now here this type of question already we have solved. X to the power x or x to the power x to the power x means triple 3 times x. So that like that also question we have already solved. So this as we'll write equation number 1. So here whenever your question is power is given, जब भी आपके क्वेश्चन में पावर गिवन रहता है तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉगरिथम रूल से सॉल्व करेंगे. सो नाउ विल टेक log on both side. So if we'll take log both side, then this x will come front. So it will becomes like this, log y is equals to x log x. Then we'll differentiate with respect to x. Log y will come derivative 1 by y. Again y derivative dy by dx. Okay, यहाँ पे हम differentiate कर रहे हैं with respect to x. So जब भी आप log y का derivative निकालते हैं with respect to x, so 1 by x, again y का derivative dy by dx. Then here we will apply product rule. First function derivative of second plus second function into derivative of first. X cancel and this side y is divided when the right side it will become multiply. Then here 1 will become 1 plus log x. Then again replace, you have to replace y in equation number 1. What is the y value? Y means x to the power x. So from equation number 1 we will write in place of y x to the power x. So here I have written from equation number 1 and this I have given equation number 2. Now this is our first answer, dy by dx. Again we have to differentiate. So again dy by dx derivative will come d2y by dx square. Now here again two product rule, two functions. So product rule, first function into derivative of second plus second function into derivative of first. Okay, so x to the power x as it is, 1 is a constant derivative is 0 and log x derivative will come 1 by x plus this bracket as it is, and here x to the power x already we have find this एक्स टू द पावर एक्स का यही आंसर है, क्योंकि हमारा देखिए ये क्वेश्चन था इसका भी एक्स टू द पावर एक्स, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला इक्वेशन नंबर 2 से ये आंसर. तो यही हमारा हो गया डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एक्स का आंसर. सो वी विल पुट हियर इन प्लेस ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दिस आंसर इन क्लोज ब्रैकेट. देन हियर एक्स, सी हियर एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स का पावर एक्स है और यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं मीन्स 1 होता है. सो जब ये अकॉर्डिंग टू इंडाइसेस रूल जब ये इसका पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. दोनों का बेस सेम है, दोनों का भी बेस एक्स है, तो जब बेस सेम रहा तो पावर को हम एक में लिख सकते हैं. सो यह एक्स टू द पावर एक्स -1, ये ऑलरेडी एक्स है और ये जो +1 है ये जब ऊपर जाएगा इसके साथ -1 हो जाएगा. देन एक्स टू द पावर एक्स और ये दोनों भी ये सभी मल्टीप्लिकेशन में. सो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आया है इसलिए उसका होल स्क्वायर आएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का सिक्स्थ. यहाँ पे हमने लॉगरिथम डेरिवेटिव जैसे सॉल्व किया है उसका यूज़ किया है यहाँ पे. देन आफ्टर दैट विल सी, यहाँ पे जो भी अब क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग कर सकते हैं, सिमिलरली सेम है. नाउ फाइंड सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स सेम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. बट यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ में हमें कुछ एंगल देखे वो हम देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में राइट साइड में आर थीटा यू वी ऐसे टाइप के कुछ टी ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं तो यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम यूज़ करना है जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है. सो फर्स्ट यहाँ पे राइट साइड में थीटा है तो हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, x is equals to this and y is equals to this. Now we will differentiate with respect to theta. Why? Because our right side variable is theta. So x derivative will come dx by d theta. A as it is, theta derivative will come 1 because with respect to theta, and sine derivative will come cos. Okay, so this is as equation number 1. Similarly we will find for y. Y derivative will come dy by d theta. A as it is, 1 is a constant derivative will come 0, so no need to write. एंड कॉस थीटा विल कम माइनस साइन थीटा. ओके, यहाँ ऑलरेडी माइनस है और आप इसका भी डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं कॉस का तो माइनस साइन आएगा. देन माइनस माइनस बोथ विल कैंसिल, विल गेट ओनली साइन थीटा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम, ये हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. अब यहाँ पे हमारा थीटा पैरामीटर है इसलिए हमने यहाँ पे थीटा यूज़ किया है. सपोज यहाँ टी यूज़ रहता है तो हम यहाँ टी लेते थे, मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ चेंज करना है वेरिएबल.
So dy by d theta we got from equation number 2 this a sin theta, and dx by d theta value we got this. So both will put a cancel, we got this, and we know that sin theta and 1 minus cos theta standard formula, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं. ओके, ये आपको याद रखना है. साइन थीटा का ये फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. सो यहाँ पे हमने दोनों के फॉर्मूले पुट किए हैं. 2 कैंसल, 1 sin कैंसल. सो ऊपर बचेगा एक कॉस और नीचे बचेगा एक साइन, बिकॉज यहाँ पे 2 साइन थे. सो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें मिला cot थीटा बाई 2. सो दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन नेक्स्ट. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसी को हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव cot का क्या आता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स. अब यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ एंगल ये यूज़ करेंगे. सो माइनस कोस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2. अब यहाँ थीटा बाई 2 का भी डेरिवेटिव निकलेगा 1/2. फिर से हमें थीटा का भी डेरिवेटिव यहाँ याद रखिए, जब भी ऐसे पैरामीट्रिक आप लगाते हो तो जो भी पैरामीटर उसका भी डेरिवेटिव आपको हमेशा लिखना है. यहाँ पे नहीं लिखोगे तो रॉन्ग होगा आंसर. सो डी थीटा बाय डी एक्स, ये हम थीटा का डेरिवेटिव निकालें. देन हमारे पास डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू नहीं है, सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा है. सो हम ये डी एक्स बाय डी थीटा है, इसको डी थीटा बाई डी एक्स को हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे ऐसे 1/, में, ताकि इसको हम रेसिप्रोकल ये करें या ये दोनों का मीनिंग सेम है. सो डी एक्स बाई डी थीटा वी कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 से हम ये वैल्यू पुट किए हैं, बाकी एज इट इज़. देन ये जो 1 माइनस कॉस थीटा, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो a है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है डिवाइड में. सो -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर. देन ये भी कोसेक स्क्वायर है, ये भी कोसेक स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, तो हम पावर का ऐड करेंगे 2 + 2 4. सो -1/4a इंटू कोसेक टू द पावर 4 इंटू थीटा बाई 2. सो दिस इज़ द लास्ट आंसर. तो यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन में पैरामीटर्स है तो आपको पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम लगा के सॉल्व करना है. और यहाँ पे एक बात ये याद रखना है कि जो भी पैरामीटर है उसका भी डेरिवेटिव आपको आएगा. अगर टी रहता है पैरामीटर तो आप टी बाई डी एक्स लीजिए, थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स. सो यस है यहाँ पे इसका आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में देखिए यहाँ पे कुछ एंगल की वैल्यू देके थीटा मीन्स हमें सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, बट एट द लास्ट जहाँ पे थीटा है आपको पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री पुट करना है एंड फाइंड करना है वैल्यू. सो यह पैरामीटर सेम थीटा पैरामीटर है, सो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. एक्स का डेरिवेटिव विल कम डी एक्स बाई डी थीटा, साइन डेरिवेटिव विल कम कॉस, सिमिलरली वाई डेरिवेटिव विल कम डी वाई बाई डी थीटा. नाउ यह साइन क्यूब थीटा. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला. सो एक्स टू द पावर एन विल कम एन, एक्स टू द पावर एन -1. सो यहाँ पे 3 आगे आएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2. अगेन साइन थीटा का आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे पहले हम एक्स टू द पावर एन लगाए, फिर उसके बाद साइन का भी डेरिवेटिव कॉस निकला. सो दिस एज इक्वेशन नंबर 1, दिस एज इक्वेशन नंबर 2. देन पैरामीट्रिक फंक्शन में थ्योरम में पुट करें वैल्यूज़ डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू. देन कॉस कैंसल, सो हमें ये मिला. ना अगेन विल डिफ्रेंशिएट वाई डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आता है d2x बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. देन 3 एज इट इज़. अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 पहले आएगा साइन थीटा, क्योंकि 2 - 1 ही आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं. और फिर से साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस. ओके, यहाँ पे पहले हमने एक्स टू द पावर एन लगाया, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस लगा. देन अगेन थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स. अभी जस्ट आपको बताया जब भी पैरामीटर लगाओगे तो जो भी है उसका
डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा। देन डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल करना रहता है। सो इसको डिवाइड में लिखेंगे 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा लिखना है। देन ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में कॉस थीटा। देन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 6 साइन थीटा बचेगा। सो हमारा ये हो गया d2y/dx²। बट हमें एट द लास्ट है थीटा की वैल्यू π/2 क्वेश्चन में देखे है। सो एट थीटा इज गोस टू π/2 लिखना है। सो जहाँ पे थीटा था हमारा वहाँ पे π/2 मीन्स 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो 6 इंटू 1 6। सो ये हमारा इसका लास्ट आंसर। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव एंड पुट करना है 90 30 ये वाले वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बचे हुए जो है आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड और फोर्थ देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।